Good morning, my dear students. So, students, in previous lecture, we have studied about fruit processing, where we have saw about fruit market, where we have narrated the picture, where we have observed the picture and we have wrote a sentence on that pictures, like mother and child are buying fruits from fruit seller in market. Fruit seller have watermelon in his hand and other fruits in front of him. Mother and children are buying the fruits. So this we have wrote by observing the picture which was been provided in our EVS combined book. Then students, we have done an activity where we have colored the fruits, that was banana, mango and grapes. Then students, on page number 76, they have told us to identify the names of the fruit with the help of the picture. So there they have provided us the fruits and we have to identify which fruit is that. And we have to write the names of that fruit. So the first fruit was apple. Second was pomegranate. Third was pineapple. Fourth was watermelon. Fifth was grapes. And last was banana. So we have wrote the names below each picture. Then students, on same page they have given us an activity where they have told us to draw our favorite fruit and color it. So there we have drawn our favorite fruit. So we have drawn pineapple and then we have colored it. So this all things we have done in our previous lecture, that was fruit processing. So I hope you have understood that lesson. Okay students. Now students, in today's lecture we are going to see the new topic. So student, are you ready to learn the new topic? Very good. So without wasting your time, kindly open your EVS combined book, page number 77. So let's start. So the topic is fishery. Fisheries. Fishery. So what is meant by fishery? Fishery means where we are going to study about various types of fish, various types of animals that lives in water. तो आज के लेक्चर में हम फिशरी ये टॉपिक पढ़ने वाले. फिशरी का मतलब क्या है? फिशरी का मतलब है जितने भी एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनके बारे में हम आज स्टडी करने वाले, उनके बारे में आज हम जानकारी पाने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. इंट्रोडक्शन टू एक्वेटिक एनिमल. इंट्रोडक्शन टू एक्वेटिक एनिमल यानी जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं उसको ही हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं. एक्वेटिक यानी द एनिमल्स दैट स्टे इनसाइड द वाटर. जो एनिमल्स पानी के अंदर, पानी में रहते हैं उससे ही हम एक्वेटिक एनिमल कहते हैं. जैसे कि कौन से एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं, पानी में रहते हैं? फ्रॉग, क्रोकोडाइल, क्रैब, starfish, various types of fish, tortoise, lobster, prawns, etc. तो ये सब जो एनिमल्स है वो सब पानी के अंदर रहते हैं, पानी में रहते हैं. उसे ही हम इंग्लिश में एक्वेटिक एनिमल कहते हैं. तो आपको समझ में आया होगा एक्वेटिक एनिमल यानी क्या? एक्वेटिक एनिमल यानी जो एनिमल पानी के अंदर या पानी में रहते हैं उसे ही हम एक्वेटिक एनिमल कहते हैं. जैसे कि फ्रॉग, क्रोकोडाइल, क्रैब, लॉबस्टर, वेरियस टाइप्स ऑफ फिश, स्टारफिश, टॉर्टोइस एक्सेट्रा. तो ये सब एनिमल्स जो सब पानी के अंदर रहते हैं उसे ही हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू एक्वेटिक एनिमल. नाउ स्टूडेंट्स, in your EVS combined book on page number 77, they have provided us an activity where they have told identify and write the names of aquatic animals. तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है? यहाँ पे उन्होंने हमें हर एक पिक्चर्स दिया है. हर एक पिक्चर्स हमें देखना है और उसका नाम उसके नीचे जो लाइन प्रोवाइड की है वहाँ पे लिखना है. तो अभी हम हर एक पिक्चर के बारे में जानकारी भी पाने वाले हैं और वो उसका नाम क्या है वो भी लिखने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? ओके. सो द फर्स्ट पिक्चर इज वेरी गुड. तो फर्स्ट पिक्चर कौन सा है? फर्स्ट पिक्चर
शेल्स का है, शेल्स। जो शेल्स हमें सी पे मिलते हैं, समुद्र के किनारे मिलते हैं, शीशोर पे मिलते हैं, जो शेल्स अलग अलग प्रकार के शेल्स रहते हैं। आपने देखा होगा कोई शेल्स पर्ल जैसा रहता है, कोई शेल्स लॉबस्टर को रखने, लॉबस्टर के घर जैसे रहते हैं उसके अंदर, तो कोई शेल्स स्नेल के शेल्स रहते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के शेल्स रहते हैं। वो सब शेल्स किसके रहते हैं? जो एनिमल, जो इंसेक्ट्स पानी में रहते हैं उनके वो शेल्स रहते हैं। सो जो फर्स्ट पिक्चर है वो शेल्स का है। कौन सा पिक्चर है? शेल्स, SHELLS, शेल्स। तो आप वहां पे शेल्स लिखने वाले। सो द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ शेल्स। वहां पे आपको शेल का पिक्चर दिख रहा है। सो फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ शेल, SHELLS, शेल्स। देन द सेकेंड पिक्चर इज वेरी गुड। सेकेंड पिक्चर किसका है? फ्रॉग का है। तो फ्रॉग ऐसा एनिमल है जो पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। फ्रॉग दोनों जगह पे रहता है। तो सेकेंड पिक्चर इज ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग लिव इन वाटर ऑल्सो एंड ऑल्सो ऑन लैंड। फ्रॉग एक एक्वेटिक एनिमल है, पानी के अंदर रहने वाला एक एनिमल है। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ फ्रॉग। सो राइट स्पेलिंग ऑफ फ्रॉग, FROG, फ्रॉग, FROG, फ्रॉग। थर्ड पिक्चर इज ऑफ, वेरी गुड, थर्ड पिक्चर इज ऑफ क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ये सबसे बड़ा रहता है और ये जो एनिमल है ये पानी के अंदर भी रहता है, जमीन पे भी रहता है। और ये पानी के अंदर छुप के बैठता है और वो अपना शिकार करता है। आपने अगर डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा तो जब वो क्रोकोडाइल का सीन दिखाते हैं तभी आपने देखा कि क्रोकोडाइल पानी के अंदर पूरी बॉडी को छुपाते हैं और अपने आंखों से देखते हैं ताकि जो शिकार करने के लिए वो जा रहे हैं वो जल्दी से मिले। और वो जमीन पे भी अच्छी तरीके से चलते हैं। सो दिस इज क्रोकोडाइल, CROCODILE, क्रोकोडाइल, CROCODILE, crocodile. Okay. Then the fourth picture is very good. The fourth picture is of crab, CRAB, crab. crab ये एक एक्वेटिक एनिमल है जो पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है। ज़मीन में वो अपने खुद के ब्यूरोस रेडी करते हैं। ब्यूरोस यानी होल, अपना खुद का घर रेडी करते हैं। कैसे? होल रेडी करते हैं और वो होल के अंदर छिपते हैं। क्रैब्स के अलग अलग प्रकार रहते हैं। कोई क्रैब्स ब्लैक टाइप रहती है तो कोई क्रैब्स येलोइश टाइप रहती है। तो अलग अलग टाइप्स के क्रैब्स रहते हैं। कोई क्रैब्स पानी के अंदर रहने वाली रहती है तो कोई क्रैब्स ज़मीन पे रहने वाली रहती है। और ये जो क्रैब्स है वो हमें ज़्यादातर जो मिट्टी रहती है उसके अंदर मिलती है। क्रैब जो है वो मिट्टी के अंदर मिलती है। और क्रैब्स के टोटल कितने पैर और हाथ है? टोटल उनके 5 यानी 10 पैर्स, 10 हाथ पैर है उसके। और क्रैब बहुत शार्प रहती है। अगर उसका हाथों का जो नखून रहता है बड़ा वाला वो हमें लगे तो जल्दी से खून बाहर आता है। ये क्रैब बहुत डेंजरस रहता है और ये क्रैब कोई लोग खाते भी है। और ये क्रैब हमें कहाँ पे मिलती है? एक्वेटिक एनिमल यानी पानी के अंदर मिलता है। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ क्रैब, CRAB, क्रैब, CRAB, क्रैब। The fifth one is very good, starfish. starfish ये पानी के अंदर ही रहता है। मोस्टली ये कहाँ पे मिलता है? जहाँ पे सी है, समुद्र, जहाँ पे समुंदर है, समुंदर के अंदर ये जो स्टारफिश है वो रहते हैं। और ये स्टारफिश कैसे रहते हैं? बहुत सॉफ्ट रहते हैं। और कई कई स्टारफिश तो इनविजिबल टाइप यानी उसके अंदर का भी हमें दिखता है और ये स्टार शेप में रहता है, इसके लिए उसको स्टारफिश कहते हैं। और ये स्टारफिश हमें समुंदर के अंदर बड़े बड़े जो सी है, ओशन है, उसके अंदर मिलते हैं। और ये स्टारफिश बहुत चिपके हुए रहते हैं। अगर ये स्टारफिश पे हमारा पैर पड़े या हाथ पर तो हमारे हाथों को खुजली होती है। तो ये स्टारफिश कहाँ पे मिलते हैं? समुंदर के अंदर मिलते हैं। तो दिस इज स्टारफिश। उनका शेप कैसा रहता है?
स्टार में रहते हैं, इसीलिए उनको स्टार फिश कहा जाता है। STAR स्टार, FISH फिश, स्टार फिश। सो दिस इज स्टार फिश। उसके बाद 6 पिक्चर है, वेरी गुड, टॉर्टोइस। टॉर्टोइस को दूसरा नाम है टर्टल। तो ये टर्टल हमें कहाँ पे मिलता है? टर्टल हमें पानी के अंदर भी मिलता है और लैंड पे भी मिलता है। और ये मोस्टली टर्टल जो पानी के अंदर मिट्टी रहती है उसके अंदर छुपे हुए रहते हैं। टर्टल का ऊपर का जो बॉडी है वो हार्ड शेल रहता है, बहुत हार्ड रहता है, और उसके 2 हाथ 2 पैर रहते हैं और एक छोटा सा गर्दन रहता है जो वो कभी भी बाहर निकलता है और कभी भी अंदर लेता है। तो टर्टल क्या करता है? टर्टल का जो बड़ा वाला शेल है उसके अंदर वो अपने पैर, हाथ और गर्दन अंदर भी लेता है और बाहर भी निकलता है। और टर्टल सबसे स्लो चलता है। ये टर्टल हमें पानी में भी देखने के लिए मिलता है और ये टर्टल हमें लैंड पे भी देखने के लिए मिलता है। जब वो पानी पे आता है, पानी के अंदर ऊपर आता है तो वो ऊपर फ्लोट करता है टर्टल। अगर आपने देखा होगा तो टर्टल जब पानी के ऊपर रहते वो फ्लोट करता है, और अगर वो नीचे जाते हैं तो वो नीचे मिट्टी के अंदर जाता है। सो दिस इज tortoise, which is also known as turtle. TORTOISE, tortoise. TORTOISE, tortoise. ओके, उसके बाद है लॉबस्टर। लॉबस्टर एक सिमिलर जैसे प्रॉन्स रहता है वैसे ही रहता है, पर ये लॉबस्टर थोड़ा साइज में बड़ा रहता है और प्रॉन्स जो रहती है वो छोटे रहते हैं। तो लॉबस्टर ये प्रॉन्स के जैसे ही रहता है। जैसे क्रैब को 2 हाथ रहते हैं बड़े वाले, वैसे ही लॉबस्टर को भी रहते हैं, और लॉबस्टर के ऊपर हार्ड शेल रहता है। ये लॉबस्टर पानी के अंदर रहते हैं और कोई कोई लॉबस्टर शेल्स में भी रहते हैं। शेल्स, जो लॉबस्टर के शेल्स रहते हैं उसमें भी रहते हैं। ये जो लॉबस्टर्स है ये हम लोग खाते भी हैं। ये लॉबस्टर्स बहुत बड़े रहते हैं और छोटे भी रहते हैं, और ये ज़्यादातर लॉबस्टर्स हमें कहाँ पे मिलते हैं? पानी के अंदर मिलते हैं या तो शेल्स में मिलते हैं। सो ये है लॉबस्टर, LOBSTER, लॉबस्टर, LOBSTER, लॉबस्टर। एंड द लास्ट वन इज फिश। फिश यह एक एक्वेटिक एनिमल का सबसे बड़ा वाला मेन पार्ट, यानी सबसे बड़ा हिस्सा है। तो ज़्यादातर पानी में हमको मालूम है फिश रहते, अलग अलग प्रकार के फिश रहते, शिलोन फिश, पॉम्फ्लेट, सुरमई, रावस, अलग अलग प्रकार के फिश रहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने खाली एक ही फिश मेंशन किया, यानी फिश। तो ये फिश में अलग अलग टाइप्स के फिश आती। तो ये सब फिश कहाँ पे रहते हैं? पानी के अंदर रहते हैं। जितने भी फिश है वो सब फिश पानी के अंदर रहते हैं, कोई भी फिश बाहर नहीं रहता है, क्योंकि जो फिश का मेन थिंग है, मेन हाउस है, वो है पानी। तो ये सब एक्वेटिक एनिमल का सबसे मेन पार्ट है फिश। तो अलग अलग प्रकार के फिश रहते हैं, जैसे रावस, पॉम्फ्लेट, यस रावस, पॉम्फ्लेट, फिर सुरमई, शिलोन, अलग अलग प्रकार के फिश, डॉल्फिन, शार्क, सब फिश इसमें आते हैं। तो दिस इज फिश, FISH, fish. So students, here we have saw various types of aquatic animals. So the first one we have saw that was shell, SHELLS, 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 shells. Second one was frog, 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 frog. Third one was crocodile, 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 crocodile. Fourth one was crab, 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 crab. Fifth one was starfish, STARFISH, fish, STARFISH, fish. Sixth one was tortoise, 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 tortoise. Then seventh one was lobster, 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 lobster. And the last one was fish, FISH, fish,
FISH, fish. So this was various types of aquatic animal. So students, you will complete this in your EVS combined book on page number 77. तो आपके EVS combined book में पेज नंबर 77 पे आप ये सब नाम लिखने वाले हो. Now students, I will show you a small video where you will see various types of fish, various types of aquatic animals. So अभी जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाली हूँ उसमें मैंने सब अलग अलग टाइप्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल की पिक्चर दिखाने वाली हूँ. तो जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो. सो हियर इज द वीडियो. So students, I hope you have gone through this video. Now students, in your EVS combined book on page number 77, they have given that name the parts of fish. तो यहाँ पे उन्होंने एक फिश का आउटलाइन प्रोवाइड किया है और यहाँ पे उन्होंने हमें फिश के पार्ट्स को एरो किया है, उनके नाम लिखने के लिए बोला है. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस एक्टिविटी. सो द फर्स्ट वन इज फिश स्केल. जो फिश के बॉडी के ऊपर जो सर्कल में रहते हैं ट्रांसपेरेंट के, वो स्केल्स रहते हैं, उसका कवर रहता है जो फिश को प्रोटेक्ट करता है. सो द फर्स्ट वन इज स्केल. SCALE, स्केल. SCALE, स्केल. फिर फिश के जो विंग्स रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फिन. FIN, फिन. FIN, फिन. जिसके यूज से फिश पानी के अंदर तैरता है, जो उसका विंग है उसको हम फिन कहते हैं. FIN, फिन. FIN, फिन. उसके बाद फिश की आंखें. आंखें को हम कहते हैं आईज. EYE, EYE, फिश के आईज. EYE. उसके बाद फिश का मुंह यानी माउथ. MOUTH, माउथ. MOUTH, माउथ. MOUTH, माउथ. उसके बाद माउथ के ऊपर जो हार्ड शेल रहता है, जो बॉडी से डिफरेंट है, उसको हम ग्रिल कहते हैं. व्हाट? ग्रिल. GRLL, गिल. GRLL, गिल. क्या कहते हैं उसको? गिल. GRLL, गिल. और लास्ट में फिश की टेल, जो उसको पानी के अंदर स्विम करने के लिए हेल्प करता है, वो है उसकी टेल. TAIL, टेल. TAIL, टेल. तो ये सब फिश के वेरियस टाइप्स ऑफ पार्ट्स है. सो फर्स्ट पार्ट क्या था? स्केल. SCALE, स्केल, जो फिश के बॉडी के ऊपर रहती है. SCALE, स्केल. फिर सेकेंड वन फिश का फिन, यानी उसका जो
साइड का फिन रहता है जो उसको स्विम करने में हेल्प करता है, वो FIN फिन, FIN फिन। उसके बाद फिश का आई, EYE जो उसको देखने के लिए हेल्प करता है, EYE, EYE। फिर उसके बाद फिश का माउथ जो उसको खाने में और ब्रीथ करने में हेल्प करता है, MOUTH माउथ। फिश ज्यादातर पानी के अंदर ब्रीथ कैसे करते हैं? अपने मुंह से, जो बबल्स आते हैं वो अपने मुंह से आते हैं, तो उसका माउथ MOUTH माउथ, MOUTH माउथ। फिर उसके बाद फिश का जो फेस के ऊपर जो हार्ड शेल रहता है उसको हम गिल कहते हैं, GILL गिल, GILL गिल। और लास्ट में है फिश का टेल जो उसको स्विम करने में हेल्प करता है, फिश का टेल, TAIL टेल, TAIL टेल। तो ये सब फिश के अलग अलग पार्ट्स है, स्केल, फिन, आई, माउथ, गिल एंड टेल। स्केल, fin, eye, mouth, gill and tail. So these are the parts of fish. So students, I hope you have understood today's lecture. So students, just let us revise what we have learned in today's lecture. So in today's lecture, we have saw about fishery, where we have saw introduction to aquatic animal, where we have done an activity. In first activity, we have identify and write the names of aquatic animals. That was shell, frog, crocodile, crab, starfish, tortoise, lobster and fish. Then in second activity we have named the parts of fish. So the parts of fish were scale, fin, eye, mouth, gill and tail. So I hope you have understood it. Now students, it's a homework time. अभी आपका homework time है. So what is your homework? So the homework is you will complete your EVS combined book page number 77. तो आप आपके EVS का combined book का पेज नंबर जो 77 है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वो पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ. जो पेज मैंने अभी आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, सेम वे आपको ये देख के आपके EVS के कंबाइंड बुक में पेज नंबर 77 पे ये कंप्लीट करना है. कंप्लीट करने के बाद आपको इसका फोटो खींचना है. आफ्टर कंप्लीटिंग यू हैव टू टेक अ फोटो ऑफ दिस पेज एंड यू हैव टू सेंड इट टू मी. आपका होमवर्क कंप्लीट होने के बाद आपको ये पेज का फोटो खींचना है और मुझे भेजना है. सो दिस इज योर होमवर्क. सो आई होप यू विल डू इट. सो स्टूडेंट्स, thank you.